Hello, my dear psychology enthusiasts. I welcome you all to my channel PsychEd by Tanya. I am Tanya, and today, as mentioned earlier, we are going to start with the chapter number 1 of class 12, Variations in Psychological Attributes. So, without any further delay, let's begin. Let us now start with the chapter. We have already discussed the contents of this chapter in the syllabus overview, so I guess we'll directly begin with the chapter itself. So, here's the thing. Firstly, we'll understand about what are individual differences. Why are we all different? Okay, so individual variations are common within and across all species. हम same species के हैं. All human beings are different, right? We have different personalities, we have different nature, we have different temperament. हर चीज़ में we differ. ठीक है? Variations add color and beauty to nature, and of course that's what makes the world beautiful, right? For a moment, think of a world around you where each and every object is of the same color, say red, blue or green. How would the world appear to you? Certainly not a beautiful one. Would you prefer to live in such a world? And obviously the answer would be no. So, like objects, people too possess different combinations of traits. That's why every human being is interesting and they have their own qualities in themselves, right? So, variability is a fact of nature. And individuals are no exception to this. We differ even in our physical characteristics and also in the way we are psychologically determined. Okay, so we may be intelligent or dull, dominant or submissive, creative or not so creative, socially outgoing or withdrawn. Some of us would like to engage a lot, the extrovert people, and some are happy in their own company. They want to be in their own solitude. So that is what the differences, psychological differences are. The list of variations can be endless. Different traits can exist in varying degrees in an individual. So, what are we made up of? We have different traits in ourselves, and that is what makes us different. These traits combine in a unique way, in their own unique manner, and make us different. The question which you may like to pose is how and why people differ. ऐसा होता ही क्यों है? Why can't we all be the same? सारे पार्ट सेम है, सब कुछ सेम है हमारे बीच में. Then why do we differ in our nature? This is what the individual differences are about. ठीक है? The study of individual differences considers this only. For psychologists, individual differences refer to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior patterns. This is what psychologists are interested in. कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वही डिस्टिंक्शंस है, वही डिफरेंसेस है, वही वेरिएशंस है जिससे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर डिफाइन करते हैं. While many psychologists believe that our behavior are influenced by our personal traits, some hold the view that our behavior are influenced more by situational factors. Of course, now the example which is going to come the next is very much clear. It will make everything clear. This latter view is known as situationism, a very, very important concept, which states that situations and circumstances in which one is placed influences one's behavior. अब हो सकता है कि कोई एक टीचर है हमारे स्कूल में जिनसे हम सभी डरते हैं. नाउ अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इंगेजिंग और ऐसे बहुत ज़्यादा सोशली आउटगोइंग है, एंड मैं हु इज़ वेरी मच विड्रॉन. वी बोथ विल एक्ट silently or maybe in a very very decent way in front of that teacher, क्योंकि हम दोनों को उनसे डर है. वी नो कि वी हैव टू मेंटेन सम बाउंड्रीज. ना ही वो उनसे इतना कैजुअली बात कर पाएगा जैसा कोई और टीचर से जो हमारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं उनसे बात कर पाए, और मैं तो वैसे ही नहीं कर पाऊंगी. सो दैट इज द थिंग. A person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in the presence of her or his top boss, right? Sometimes the situational influences are so powerful that individuals with differing personality traits respond to them in almost the same way, the way I explained, right? The situationist perspective views human behavior relatively more as a result of external factors. ठीक है? तो जो ऊपर हमने पढ़ा विच वॉज लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हमने पढ़ा लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर बिहेवियरल पैटर्न डिटरमाइन कि उनमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी. बट वन केस इज ऑल्सो दैट हो सकता है हमारा बिहेवियर वैसे बहुत डिफर करता है, बट सिचुएशन ही ऐसी है दैट वी हैव टू एक्ट इन द सेम वे. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कॉन्सेप्ट, राइट? सो नाउ
we'll study how our psychological attributes assist. Psychological attributes are involved in very simple phenomena like in time taken to react to a stimulus, that is reaction time, and also in highly global concepts like happiness. It is difficult to count and specify the number of psychological attributes that can be assessed. ठीक है, काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी सारे ट्रेट्स होते हैं, काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं दैट मेक अप अ पर्सन, राइट. सो they are to be assessed to determine a person's intelligence, their personality, their values. ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती हैं. असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. ठीक है, सबसे पहले अगर हमें एक इंसान को समझना है, वी नीड टू नो क्या उसके अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, एंड उन्हें समझने के लिए वी नीड टू मेक एन असेसमेंट. सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड एनी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. Assessment refers to the measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. Right? So assessment क्या है? Psychological attributes को measure करने का एक तरीका जिनसे हमें पता चले, अच्छा ये वाला एट्रीब्यूट इतनी लेवल पर है, ये एट्रीब्यूट इतना है, वेराइंग डिग्रीज में ये सब मिलेगा, and then we can come to a conclusion after evaluating them that yes, this is the personality trait this person has. इतनी इंटेलिजेंस इस इंसान की है. That is the thing. Any attribute will be said to exist in a person only if it will be measured by using scientific processes. साइंटिफिक प्रोसीजर्स होंगे तभी हम उसको एक रिलायबल जजमेंट मानेंगे. ऐसे तो वी ऑल्सो फॉर्म व्यूज़ ऑफ पीपल कि हाँ ये थोड़ा सा अग्रेसिव है, ये थोड़ा सा सबमिसिव है, ये थोड़ा सा शांत है, बट आर दे ऑथेंटिक? हो सकता है आपके सामने वो शांत हो, अपने घर पे बड़ा ज़्यादा मस्ती में रहते हो. सो दैट इज़ द थिंग. इसीलिए वी नीड अ प्रॉपर साइंटिफिक रिलायबल प्रोसेस टू इवेलुएट थिंग्स. For example, when we say Harish is dominant, we are referring to the degree of dominance in Harish. This statement is based on our own assessment of dominance in him. हो सकता है मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर टोन में बात कर लिया, तो आई वुड फील यार ये तो हमेशा अपनी अपनी चलाती है, ये तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है ना. अदरवाइज हो सकता है शी इज़ नॉट द सेम विद ऑल. दैट इज़ द थिंग, राइट. This statement is based on our own assessment of dominance in him. Our assessment may be informal or formal. जो असेसमेंट हम करते हैं, जो व्यूज़ हम बनाते हैं बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंसेस, दे आर व्हाट इनफॉर्मल. एंड फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? एन असेसमेंट विच इज़ ऑब्जेक्टिव, विच इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एंड विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रॉपर प्रोसेस जो फॉलो करता है. On the other hand, informal assessment varies from case to case. The way I told you, मेरे साथ कुछ और बिहेवियर हो सकता है किसी का, कोई और फ्रेंड के साथ कुछ और बिहेवियर हो सकता है. एंड फ्रॉम वन असेसर टू अनदर. तो मेरे लिए कोई इंसान बहुत ही बुरा, बहुत ही अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए वही इंसान बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा हो सकता है, राइट. एंड therefore is open to subjective interpretations. मैं किसी और तरह से करूँगी, आप लोग किसी और तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो. दैट इज़ द थिंग. Psychologists are trained in making formal assessment of psychological attributes. और psychologists जो होते हैं, they are to make psychological assessment very much formal कि accurate detail हमें पता चले. Okay, so then once the assessment is, then we'll predict कि भाई ये इंसान ऐसा है. प्रॉपर असेसमेंट हो गया, फॉर्मल असेसमेंट हो गया, देन वी कैन एट्रीब्यूट कि हाँ दिस पर्सन इज दिस वे, right? We may predict that Harish, if given a chance to lead a team, will most likely be an authoritarian leader, right? If the predicted consequence is not what we want, we may want to intervene to effect a change in Harish's behavior. The attribute chosen for assessment depends on our purpose for assessment. ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है, मुझे इंटेलिजेंस मेजर करनी है, आपको पर्सनालिटी मेजर करनी है, तो वील यूज सच टेस्ट अकॉर्डिंगली, जो भी उसका मेथड होगा, राइट. In order to help a weak student to perform well in examinations, we may assess her or his intellectual strengths and weaknesses. क्या चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, रीडिंग से समझ में ज़्यादा जल्दी आता है, रीडिंग से लर्न होता है या सुनने से लर्न होता है, लिखने से लर्न होता है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें. If a person fails to adjust with members of his or her family and neighborhood, we may consider assessing her or his personality traits. ठीक है, personality characteristics हमें देखनी पड़ेगी कि why is he not able to adjust with that surrounding, right?
फॉर अ पुअरली मोटिवेटेड पर्सन हम उसके इंटरेस्ट को देखेंगे, उसकी प्रेफरेंसेस को देखेंगे, हो सकता है ही इज़ नॉट इन द राइट प्लेस, जो चीज़ में उसको इंटरेस्ट है वो काम वो कर ही नहीं रहा है, वो कहीं और ही अपना एफर्ट्स दे रहा है. सो वी नीड टू फाइंड द सोर्स फॉर मोटिवेशन जिससे he will feel better. Psychological assessment uses systematic testing procedures to evaluate abilities, behaviors and personal qualities of an individual. जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं ये इंसान की क्या करते हैं, सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ कर कर इंसान की एबिलिटीज़ को, उनके बिहेवियर को, उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ को जज करते हैं एंड दे टेल अ बेटर व्यू अबाउट अ पर्सन. ठीक है. सो दिस लाइन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आपको अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट की आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है सो दैट कैन बी रिटन. एंड ऑल्सो आपके पास MCQs में पूछ सकता है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, कैसे उनको मेजर करते हैं, क्या होता है. तो दीज लाइन्स कम इन MCQs लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू, एंड ऑल्सो इन theory you can use these lines to make your answer better. Okay. So next, some domains of psychological attributes. अब कुछ 5 domains हैं which we are going to study about psychological attributes. वैसे तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ 5 हम पढ़ने वाले हैं. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर और यूनिडायमेंशनल. ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हमने पकड़ ली, हाँ इससे डिटरमाइन हो गया. वी नीड टू लुक फॉर मैनी 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 थिंग्स जिससे हम एक इंसान को प्रॉपरली समझ पाएँ. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड उनको हम डायमेंशंस के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं. A line is a mere aggregate of points. A point occupies no space. But think of a box. It occupies space. It can be described only in terms of its 3 dimensions, length, width and height. Similar is the case with psychological attributes. ठीक है, यही केस है psychological attributes के साथ भी. हम एक ही चीज़ को पकड़कर उसको नहीं समझ पाएंगे. It has to be multidimensional. एक पूरा हमें असेसमेंट करना पड़ेगा एंड उसी से आपको समझ में आएगा कैसे वो फंक्शन करेगा इन वेरियस डोमेन्स और एरियाज सच एज कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स. ठीक है, एक इंसान को समझने के लिए हमें उसके वेराइंग जो एट्रीब्यूट्स हैं एंड उसके भी जो डोमेन्स हैं हमें उनको समझना पड़ेगा. राइट. We will discuss in this chapter some important attributes that are of interest to psychologists. These attributes are characterized on the basis of varieties of tests used in psychological literature. Intelligence test use होता है, aptitude test use होता है, interest test use होता है, personality test use होता है. तो all these things उसके रिगार्डिंग जो मेजर टेस्ट के बेस पे हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं हम वो पढ़ने वाले हैं. राइट. Intelligence is a global capacity to understand the world, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. Global capacity क्या, एक इंसान की पूरी abilities to understand the world, कैसे वो इंसान world की जो चीज़ें हैं, जो surroundings हैं उनको समझता है. is he a rational thinker or not, वो अपने पास के जो resources हैं उनको कितना efficiently यूज़ कर पाएगा अगर उसके पास कोई challenge face होता है या in general life में भी. ठीक है. Intelligence tests provide a global measure of person's general cognitive कॉम्पिटेंस. ठीक है, कितना उसमें स्मार्टनेस है, कितना उसमें एबिलिटी है ना. एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग. कोई बच्चे होते हैं दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म सो वेल इन स्कूल. राइट. तो वो भी एक गाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि कितना इंसान, ऑब्वियसली हमारे जो टीचर्स होते हैं वो तो मार्क्स के बेस पर ही जज करते हैं. अच्छा इसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इज इंटेलिजेंस, इसके कम मार्क्स आ रहे हैं, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा करके. राइट. जनरली स्टूडेंट्स हैविंग लो इंटेलिजेंस आर नॉट लाइकली टू डू सो वेल इन स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशंस. बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वो नेक्स्ट है. ठीक है. देयर सक्सेस इन लाइफ इज़ नॉट एसोसिएटेड ओनली विद देयर इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स. हो सकता है कोई इंसान वैसे अकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट को करिकुलर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वोंट यू कॉल देम इंटेलिजेंट. ऑब्वियसली दे आर इंटेलिजेंट बट अपनी अपनी फील्ड में. ठीक है. बट जो एक जनरल को आप गिफ्टेड लोग होंगे या जिनकी एक बेसिक इंटेलिजेंस लेवल होती है, दे आर यूजुअली स्कोरिंग वेल, एवरेज टू अबव एवरेज ही परफॉर्मेंस रहती है उनकी स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशंस में भी. ओके. नाउ नेक्स्ट, एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स. मेरे में एबिलिटी है क्या, हो सकता है मैं वो काम अभी कर नहीं रही बट कैन आई परफॉर्म वेल, है ना. Aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training. This is a key word.
एप्टीट्यूड क्या है, अभी तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बट अगर मुझे रिसोर्सेज दे दी जाए, मुझे सिखा दिया जाए कि ये काम ऐसे करना है, विल आई बी एबल टू परफॉर्म इट इन अ बेटर वे, विल आई बी एबल टू परफॉर्म इट इन द बेस्ट वे. सो ये वाली चीज़ होती है. अ पर्सन विद हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैन प्रॉफिट फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड कैन डू वेल एज एन इंजीनियर. ठीक है. सिमिलरली अ पर्सन हैविंग हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड कैन बी ट्रेन टू बी अ गुड राइटर. हो सकता है मुझे अभी मेरी स्किल का अंदाज़ा ही नहीं है, व्हेन आई एम गिवन दैट अपॉर्चुनिटी, जब मुझे वैसा इन्वायरमेंट, वैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, आई कुड एक्सेल इन दैट थिंग. सो दैट इज़ वॉट एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर. कि ठीक है, मुझे इंटरेस्ट बहुत चीज़ों में हो सकता है, बट इसमें से मैं बेस्ट परफॉर्म किस में कर पाऊँगी, मेरे में किस चीज़ का एप्टीट्यूड अवेलेबल है, किस चीज़ का पोटेंशियल है मेरे अंदर. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. Interest is an individual's preference for engaging in one or more specific activities relative to others. हो सकता है मेरे पास 2 या 3 स्पोर्ट हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरे को हर स्पोर्ट में उतना ही इंटरेस्ट हो जितना मुझे मेरे फेवरेट स्पोर्ट में इंटरेस्ट है. फेवरेट चीज़ क्या होती है जिसके लिए आपकी प्रेफरेंस है, कोई भी चीज़ के आगे यू विल प्रेफर दैट. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इंटरेस्ट टेस्ट मेजर. कि ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, 5 और तुम्हारे सब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है. लेट्स टेक बेसिक एग्जांपल्स. मैथ्स है तुम्हारे पास, साइंस है तुम्हारे पास, एसएसटी है, जो भी चीज़ें हैं. तो 11th में हम किस बेस पर हमारी चॉइसेस बनाते हैं कि ठीक है मैथ्स वैथ्स पसंद है, लेकिन यार साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, तो लेट्स टेक कॉमर्स, थोड़ा सा सही रहेगा हमारे लिए. ठीक है. एसएसटी पसंद है, लेट्स टेक ह्यूमैनिटीज़, हमारे लिए बेटर रहेगा. तो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ के डिसीजंस भी काफ़ी ज़्यादा जज होते हैं. स्ट्रीम, करियर वगैरह, सब्जेक्ट, कोर्सेज, ये सब चूज़ करने में भी प्रेफर कि हम हमारी प्रेफरेंस देखते हैं, हम हमारा इंटरेस्ट देखते हैं कौन से फील्ड में ज़्यादा है. राइट. सो assessment of interest of students may help to decide what subjects or courses they can pursue comfortably and with pleasure. ये आपसे पूछा जा सकता है. मे बी आपको एक केस स्टडी दे दे जिसमें आपको बता दे कि अ पर्सन हैज़ टू डिसाइड बिटवीन दिस सब्जेक्ट्स. उनको अपना कोर्स चूज़ करना है, 11th में जाने वाला है, दे नीड टू चूज़ देयर स्ट्रीम. तो उसके लिए कौन सा टेस्ट उनके लिए बेस्ट होगा. सो वील टेक विच आंसर, हमारा इंटरेस्ट टेस्ट. ओके. Knowledge of interest help us in making choices that promote life satisfaction and performance on jobs. ऐसे जब आप टेस्ट लेते हो तो यू आर एबल टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस कि हाँ ये रिजल्ट आया एंड आई टू फील कि मेरे को इसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वील परस्यू दैट. Then personality. Personality refers to relatively enduring characteristics of a person that make her or him distinct from others. ठीक है. पर्सनालिटी हमारे कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें स्टेबल ही रहेंगे कि हाँ मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट टू रिएक्ट यही है ना. दैट इज़ व्हाट पर्सनालिटी टेल्स अस. पर्सनालिटी टेस्ट ट्राई टू असेस एन इंडिविजुअल्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जाम्पल, वेदर वन इज़ डोमिनेंट और सबमिसिव. हो सकता है कि इंसान हर किसी के साथ ही डोमिनेंट है, या एक इंसान बहुत ही ज़्यादा शाय एंड हर किसी के साथ ही सबमिसिव है. तो उसका पर्सनालिटी ट्रेट हो गया कि दैट इज़ हाउ अ पर्सन इज़. ठीक है. कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोशली आउटगोइंग हो सकता है, कोई विड्रॉन हो सकता है, कोई बहुत ही ज़्यादा मूडी, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी दुखी हो गए, कभी बहुत हंस खेल रहे हैं. ठीक है, वो वाला सीन हो सकता है. कभी बहुत ही स्टेबल रहता है, जल्दी से हंसना नहीं, जल्दी से हंसनी, नॉर्मल अपने मूड में रहना है. ठीक है. इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस. पर्सनैलिटी असेसमेंट हेल्प अस टू एक्सप्लेन हाउ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट हाउ शी और ही विल बिहेव इन फ्यूचर. कि ये सिचुएशन होगी तो ये तो ऐसे ही एक्ट करने वाला है ना. कोई हमारा एक ना एक दोस्त ऐसा होता है दैट वी नो, कोई भी सीरियस सिचुएशन आएगी, वी नो दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू टेक इट सीरियसली एंड वो बहुत ही मजाक करने वाला है उस चीज़ में का भी, है ना. वैल्यूज़ आर इंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर. वो सबके लिए डिफरेंट होती है. राइट. हो सकता है मेरे लिए कुछ और चीज़ आइडियल है, आप लोग को कुछ और चीज़ सही लगे. मॉरल्स एंड ऑल इन सब चीज़ों पे, बिलीव्स हमारे जो क्या होते हैं इन सब चीज़ों पे बेस्ड होती है. अ पर्सन हैविंग अ वैल्यू सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर गाइडिंग हर और हिज एक्शंस इन लाइफ एंड ऑल्सो फॉर जजिंग अदर्स. मैं मेरी लाइफ में जो भी डिसीजंस लूँगी दैट आर टू बी गाइडेड कि मेरे अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, मुझे क्या चीज़ सही लगती है, क्या चीज़ गलत लगती है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर मी, व्हाट आर माई बिलीव्स इन अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. दैट इज़ व्हाट डिटरमाइंस अ पर्सनस डिसीजन एंड कैसे वो दूसरों को इवैल्यूएट करता है. हो सकता है मुझे एक चीज़ नहीं पसंद एंड सामने वाला वो चीज़ कर रहा है, तो आई विल बी अवॉइडिंग दैट पर्सन की ओके यू डोंट मैच माई वैल्यूज़, मेरे को नहीं ऐसे लोगों को दोस्त बनाना. राइट. ऐसे करके
In value assessment, we try to determine the dominant values of a person. पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, सोशल है, इकोनॉमिक है, हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ बिल्ड होती है, राइट. देन कम्स सम असेसमेंट मेथड्स. अब हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है. उस असेसमेंट में हम एक्चुअली मेजर क्या करते हैं, वाई डू वी नीड टू मेजर स्टफ, क्यों वो साइंटिफिक ही होना चाहिए, क्यों फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दीज थिंग्स. अब असेस करोगे कैसे, ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं. सम ऑफ विच यू ऑल्सो हैव स्टडीड इन योर 11th. सो फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. ये एक ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर है ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्यों, बिकॉज फॉर्मली असेस होता है, ठीक है. एंड स्टैंडर्डाइज एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, पर्टिकुलर प्रोसेस होता है टू कंडक्ट अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है. और कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे विच आर टू बी आस्क्ड, ठीक है. इससे एक इंसान की मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलती हैं. यहाँ से मेरे बोर्ड्स के टाइम लाइक लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था. इट वाज एन एजर्शन रीजन क्वेश्चन. एजर्शन रीजन यूजुअली जो होते हैं लाइन टू लाइन आ जाते हैं. लाइक एक लाइन ये हुई, इसके जस्ट नीचे पहले पैराग्राफ में एक लाइन और आएगी. सो दैट इज़ द वे यू जज कि हाँ भाई ये इसका रीज़न सही है. मेरे तो एग्जैक्टली यही आ गया था एंड ऑब्वियसली एजर्शन रीजन वो था, करेक्ट वाला आंसर था, ठीक है. Objective tests have been developed to measure all the dimensions of psychological attributes, जितनी भी हमने ऊपर 5 के 5 पढ़ी, described above. These tests are widely used for purposes of clinical diagnosis, guidance, personal selection, placement, training, ये सारी चीज़ें. Beside objective tests, psychologists have also developed certain projective tests, especially for assessment of personality, जो हम chapter number 2 में projective techniques पढ़ने वाले हैं, ठीक है. Interview involves seeking information from a person on a one-to-one basis. very important keyword, बहुत ज़्यादा important है ये, ठीक है. मार्केट, यही तुम्हारा MCQ बनेगा इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो यहीं से बनने वाला है. You may see it being used when a counselor interacts with a client, a salesperson makes a door-to-door survey regarding the usefulness of a particular product. सामने टू सामने मतलब फेस टू फेस जो बात हो रही है, दैट इज़ व्हाट एन इंटरव्यू. केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. उसमें एक इन डेप्थ स्टडी होती है जिसमें ये बाकी सारे के सारे जो तुम्हारे मेथड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और फिर निकल कर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा रिजल्ट आता है जो बहुत ही डिटेल्ड होता है. उसमें सारी चीज़ें आपकी कंसिडर होती है, आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कंसिडर होते हैं, आपकी हिस्ट्री जो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री रही है वो आपकी कंसिडर होती है बेस्ड ऑन व्हाट योर साइको सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. कैसे इन्वायरमेंट में आप बड़े हुए हो, क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड्स है, क्या आपकी पास्ट लाइफ रही है, एवरीथिंग. एंड यू आर ऑल्सो इंटरव्यूड और मे बी सम ऑफ योर क्लोज पीपल आर इंटरव्यूड. उन सब चीज़ों का जो आपको आंसर्स रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उनके बेस पर क्या होता है, देन केस स्टडी कंडक्ट करी जाती है, ठीक है. केस स्टडीज़ आर वाइडली यूज बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनको डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं या जिनको प्रॉपर डायग्नोसिस करना होता है, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दे कंडक्ट एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल. इन डेप्थ स्टडी इज़ अ कीवर्ड हेयर, ओके. केस एनालिसिस of the lives of great people can also be highly illuminating for those willing to learn from their life experiences. Case studies are based on data generated by different methods, which is interview, observation, questionnaire, and psychological tests. Okay. Observation involves employing systematic, organized, and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. अब आपको किसी इंसान को ऑब्जर्व करना है, यू कांट ऑब्वियसली इंटरफेयर कि ऐसे एक्ट करो, है ना. उसमें बायसेस का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ टोल्ड कि ये मेथड जब भी आपका रिलायबल है जब वो एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर को फॉलो करके हुआ हो. द पर्सन असेसिंग, जो आपका असेसर है, जो ऑब्जर्वर है, वो बायस नहीं है, तभी आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आपका रिजल्ट है, वो थोड़ा ठीक आएगा, रिलायबल आएगा. Certain phenomena such as mother-child interactions can be easily studied through observation. The major problems with observational methods are that the observer has little control over the situation and the reports may suffer from the subjective interpretations of the observer. हो सकता है कोई का फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा हो कि अग्रेसिव वे में, थोड़ी अग्रेसिव टोन में बात करते हैं, बट अगर मैं सॉफ्ट टोन इन्वायरमेंट में
हो सकता है ना ग्रोन अप हूँ, तो मेरे को लगेगा कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट, और मेरी ऑब्जर्वेशन देन उस चीज़ पर बायस्ड हो जाएगी. सो दैट इज़ वॉट द थिंग इज़. Then self-report measures. These are also, I guess, included in our chapter number 2. है ना? We'll be studying about some of these. Self-report is a method which is in which a person provides factual information about herself or himself, and उसके opinions क्या हैं, उसके beliefs क्या हैं, उसके बारे में basically everything. कुछ questions होंगे and उस पर based सारी चीज़ें determine होने वाली है. Such information may be obtained by using an interview schedule or a questionnaire, a psychological test or a personal diary. तो कोई भी तरह से questions, interviewing, ये सारी चीज़ें करके you come to know about a person themselves. जब मैं खुद मेरे बारे में कुछ चीज़ बता रही हूँ, that is what self report measures are. मैं खुद के बारे में रिपोर्टिंग दे रही हूँ, मैं खुद के बारे में रिपोर्ट लिखवा रही हूँ. आपने मुझसे कुछ पूछा, मेरी तरफ से जो आंसर आया, that will be considered as my response. ठीक है, तो ये होता है कि जो मैं खुद मेरे बारे में बताऊंगी, दैट विल बी अ सेल्फ रिपोर्ट. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, साइकोमेट्रिक थ्योरीज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस. ठीक है, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.